الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے کائنات کو 6 دن کے اندر اندر پیدا کیا اور اس کے بعد عرش کے اوپر وہ جلوہ افروز ہوا. پیارے اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کا پیدا کرنے والا ہے. وہ چیزیں جسے ہم دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم کو نہیں دستے، تمام کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ چیزیں ایسے ہیں جو ہم کو نہیں دستے. اللہ کی پوری کائنات میں 1 یا 2% چیزیں ہمیں دستے، کم کے تمام چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والوں کی پہلی اور اہم صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی سب سے اہم اور پہلی صفت ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے اس تمام چیزوں پہ ایمان لاتے. وہ لوگ اللہ کو نہیں دیکھے، اور ہم لوگ تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھے، فرشتوں کو نہیں دیکھے، اور جنت کو نہیں دیکھے، جہنم کو نہیں دیکھے، اور برزخ کی زندگی کو نہیں دیکھے، پلسرات کو نہیں دیکھے، ترازو کو نہیں دیکھے، اعمال نامہ کو نہیں دیکھے، اور مگر تمام چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے. تو اسی لیے ایمان والوں کی صفت تمام چیزوں پہ ایمان لانا. اور ہم لوگ اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سب کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. جو بھی چیز ہے اس کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے میں پیدا کرا. یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے. تمام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور یہ کائنات جس کو ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑی اس کائنات کو پیدا کرنا اور اس کو چلانا، اس میں بسی ہوئی مخلوق کی حفاظت کرنا، اس کو روزی روٹی کا انتظام کرنا، اور کل قیامت کے دن اس جو ہے کائنات کو درہم برہم کر کے اور پھر نئی خلقت کو لانے پر اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز، یہ تمام معاملوں میں اللہ تنہا ہے. اللہ کسی کی مدد نہیں لیتا، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اسے تھکان بھی نہیں آتی. اللہ نے فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام وما مسنا من لغوب. اللہ نے 6 دن کے اندر اندر اس کائنات کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اس کو ذرہ برابر بھی اللہ فرماتا ہے وما مسنا من لغوب، اس کو کوئی تھکان اللہ کو نہیں آئی.
اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پیر کو، منگل کو، چہارشنبے کو، جمعرات کو، جمعہ کو، ہفتے کو، تو اللہ تبارک و تعالی اتوار کے دن اللہ تھک کر نعوذ باللہ اللہ ریسٹ لیا، اسی لیے بولتے ہالیڈے، ریسٹ ڈے. مگر ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ غلط بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکان بھی آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور تمام چیزوں کی حفاظت اللہ کو تھکان میں نہیں ڈالتی. اللہ تھکتا نہیں ہے. اگر وہ تھک جاتا ہے، اس کو نیند آتی ہے، اس کو اونگ آتی ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ سوتا ہے، مرتا ہے، مرنے کے بعد اٹھتا ہے، تو وہ اللہ نہیں ہے بلکہ وہ کمزور ہے. اللہ تمام کمزوریوں سے اللہ کی ذات پاک ہے. اسی بات اور ایسے اللہ کے ہم کو چاہیے ہم اس کی عبادت کریں. اور جب اللہ زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، ہم کو روزی روٹی دیتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، اور موت کے بعد پھر زندگی دیتا ہے، تو تمام چیزیں جب کرنے والا اللہ ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونا چاہیے. تو جو لوگ دنیاوی زندگی میں اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کو پہچانتے اور اس کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ایسے بندوں کے لیے اور ایسے بندیوں کے لیے اللہ جنت کو بنایا. اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں مست ہے اور مگن ہے اور دنیا کی زندگی ان لوگوں کو غفلت میں ڈال ڈالی، وہ نہ اللہ کو پہچانے بھی تو عبادت نہیں کرتے، سستی کرتے، اور اللہ کی جو ہے ذکر نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کرتے، اپنی منمانی زندگی کا جو ہے کرتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ جہنم کو بنایا. اور یہی بات کو بتانے کے لیے کہ فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے جہنم ہے، یہ چھوٹی سی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. ان تمام پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود ہو، سلام ہو، اور خصوصاً بالخصوص ہم تمام لوگوں کے پیارے حبیب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم تمام لوگوں کے پیارے ہیں اور پورے کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اور قیامت کے دن تمام لوگوں کی سفارش کریں گے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خصوصی درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب دیکھیے قرآن مجید سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہے. سورہ التحریم کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ تبارک و تعالی 4 عورتوں کی مثال پیش کرتا ہے. کتنے؟ 4 عورتیں. غور سے سنیے. 4 عورتوں کی جو ہے اللہ مثال سناتا ہے. 2 عورتیں نیک نبیوں کی بیویاں، 2 عورتیں، اس میں سے ایک عورت فرعون کی بیوی، ایک ظالم کی. اس میں سے 4 لوگوں میں سے 2 نیک عورتیں، جو 2 بدکار عورتوں کا اللہ ذکر کرتا ہے قرآن کے اندر. اس کی مثال پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے. اللہ مثال پیش کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم آیت نمبر 10 اور 11 میں. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح. دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی اللہ تبارک و تعالی مثال دیتا ہے. اللہ نے کہا کہ کانتا تحت عبدین، یہ دونوں کے دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں ہیں. ایک تو بڑے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 950 سال صرف تبلیغ کا کام کرنے والے نبی حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام،
दोनों के दोनों पैगंबर, मगर दोनों के दोनों की बीवियां नाफरमान निकले, दोनों भी खयानत करे, नबी का साथ देना छोड़कर काफिरों का साथ दिए, ईमान लाने के बदौलत बेईमानों का साथ दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला वो दोनों को भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो पानी का सैलाब आया उसमें अल्लाह तबारक व तआला उनको डुबाकर उनकी बीवी को अल्लाह गरक कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, जब वो लोग लूत अलैहिस्सलाम की कौम लवातत का जो है गुनाह करते थे कि औरतों के बजाय वो लोग मर्दों से जाकर नऊजुबिल्लाह जीना करते थे, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो तुम लोग दुनिया के अंदर ऐसी बदकारी कर रहे हो पहली मर्तबा कि इससे पहले किसी कौम ने नहीं किया। देखो लड़कियां हैं, उनसे निकाह करो, उनसे जीना करो, मगर ये लोग नहीं सुने। तो अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्तों को, यहां तक कि तीन का भी जिक्र आता है, बहरहाल अल्लाह फरिश्तों को लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसान के शक्ल में भेजा। अब फरिश्ता इंसान के शक्ल में आए तो कितना खूबसूरत रहता। खूबसूरत फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो इनको देखो मेरे शौहर के पास खूबसूरत लड़के आको है, जाओ तुम्हें उनको पकड़ लो बोल को खुद जो है उनकी बीवी ना जाके, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जाकर ये जो उनकी कौम वाले थे उनको बोले। तो ये लोग आ गए, बोले कि लूत उनको भेज डालो, लड़कों को हमारे हवाले कर डालो। तो फरिश्ते बोले लूत अलैहिस्सलाम से, ईमान वालों को लेके राते रात निकल जाओ, पीछे फिर को नहीं देखना, सुबह होने से पहले पहले यहां से निकल जाओ, इनका हिस्सा हमें देख लेते। बोले मेरी बीवी, तेरी बीवी नहीं, अब छोड़कर चले जाओ, तेरी बीवी नाफरमान हो गई। नाफरमानों को नहीं, तुम्हें तेरी बीवी को छोड़ के तेरे घर तेरे भाई बेटियों को ले लो और ईमान वालों को लेके निकल जाओ, पीछे फिर के देख नहीं सका, चल जाओ बोले अल्लाह तबारक तआला। तो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको अपने ईमान वालों को लेके निकल गए। यहां अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। अल्लाह फरमाता है एक एक पत्थरों की बारिश, ऐसा पहाड़ जो है फुटा कि ऐसा लावा उसके अंदर से निकला गरम गरम कि आज भी वो पूरी बस्ती को अल्लाह उलट के रख दिया। आज भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम जहां बस्ती थी उस एरिया को डेड सी बोलते, यानी दरिया का पानी भी उस अजाब की वजह से इतना मुतासिर हुआ, अगर जिंदी मच्छी को ले आकर पानी में डाले तो 5 मिनट में मछली मर जाती, कौन सी भी मछली उसमें जिंदा नहीं रहती। कौन तो भी आदमी जाकर उसमें डुबकी मारे तो भी अंदर नहीं जाता, ऊपर तैरता था। मगर ऐसे इलाकों में जाने से जहां अल्लाह का अजाब आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे, हम लोग ऐसे इलाकों में नहीं जाना चाहिए। तो बहरहाल तो ये दोनों जो है इनके गुनाह नबी की बीवी होने से नहीं बचा, नबी की बीवी होना इनको काम नहीं आया दोनों को। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, हमें यह ना समझे कि हम मुसलमान हैं, हम तौहीद फरस्त है, हमारा जो है घराना हमारा खानदान हमें हमारी हिफाजत करेगा। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हर एक को भी जो है उसका हर एक इंसान को उसका अमल जो है उसका साथ जो है आएगा। हर आदमी को जो है अल्लाह तबारक व तआला, हर आदमी को अल्लाह तबारक व तआला उसके अमल के हिसाब से अल्लाह उसको उठाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा बंद कर लिए, रोते हैं अल्लाह के नबी, रोते हैं। साहबा परेशान हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ होती तो साहबा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी दरवाजा खोलिए, आपको क्या हो गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने की आवाज के अलावा कोई आवाज अंदर से नहीं आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तकलीफ को देखकर साहबा समझे चलो जाके अल्लाह के नबी के चाचा को बुला के लाएंगे। उन्होंने बुलाए तो दरवाजा खोलते गए, जाके अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला के लाए। अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजा खटखटाए, भतीजे मोहम्मद दरवाजा खोलो, क्या भी जवाब नहीं अंदर से। गए साहबा गए, उनके फूफी सफिया को बुलाए, देखो अल्लाह के नबी दरवाजा नहीं खोलते हैं, आओ तुम्हें तो भी बोलो। आगो बोले उनको भतीजे मोहम्मद दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खुला, रोते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब साहबा सोचे अल्लाह के नबी दरवाजा खोलना का तो बे फातिमा को बुलाना। गए फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास,
दौड़ते हुए आए, क्या परेशानी है मेरे अब्बा को, मेरे अब्बा क्यों रोते हैं? आके बोले अब्बा जान। तो जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की आवाज सुने और कहा, उनका गम जो है उबल पड़ा, उनका गम जो है बाहर निकल के आया और फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी फूफी सफिया, ऐ मेरे चाचा अब्बास, मैं कल तुम्हारा कुछ काम नहीं आऊंगा, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, तुम्हारा जो है भतीजा नबी होना, ऐ फातिमा तेरा बाप नबी होना, कल तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। तो नबी की बीवी हो जाना, नबी की बेटी हो जाना कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक अच्छे अमल अगर नहीं करे तो कोई भी जो है कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुद अपना अमल करो, कल कयामत के दिन मैं कुछ तुम्हारा जो है काम नहीं आऊंगा, क्योंकि कयामत का दिन बहुत होलनाकी का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 मकामात ऐसे हैं जहां इंसान अपने आप को भूल जाता, किसी को उसका याद नहीं रहता। कयामत का दिन ऐसा दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइदिन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाता है कयामत का दिन ऐसा होगा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जमीन जो है हला दी जाएगी, झिंझोड़ दी जाएगी। आज जो है आज भी जलजले आते, कल जो है 2 म्यांमार में ऐसे जलजले आए, लोग रोडों पे जिंदगी बसर करते हैं। अब हम लोग देखे टीवी में उसकी खबर आई कि लोग घर में जाने डर जाते हैं, काम बिल्डिंग गिर जाते कि ऊपर आको क्या गिर जाता कि बोल को। मगर हिंदुस्तान में अब यहां हमें सुकून से है। और देखो अब नेपाल में जलजले आए, और कि परसों 1 साल पहले तुर्की में आए, उसके पहले कहीं कहीं आए। मगर दुनिया के अंदर कहीं एक जगह जलजला आता है अब तो एक हिस्सा बच जाता। कयामत का दिन ऐसा नहीं, पूरी जमीन हिला दी जाएगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने अंदर जितने भाई वजन है उस पूरा वजन बाहर डाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा क्या हो गया जमीन को, आज क्या हुआ है जमीन को, क्यों ऐसा कांप रही है। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, तुम्हारे रब ने उसको वही के जरिए अल्लाह ने कहा तू जो है पूरे हिल जा, तो वो हिल जाएगी वो। तो मेरे प्यारे इस्लामी माँ और बहनों, तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का खौफ करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा को कहते हैं कि मेरा नबी होना तुम्हें काम नहीं आएगा, मेरा जो है अपनी फूफी से कहते हैं मेरे प्यारे फूफी, मेरा नबी होना तुम्हें काम नहीं आएगा, मेरी प्यारी बेटी फातिमा तेरा बाप नबी होना तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा, अमल करो, तुम्हारा अमल ही तुम्हें काम आएगा। तो हमें किस खेत के मूली है हमें सोचना चाहिए। कयामत के दिन हमारा क्या हौलनाकी होगी हमको याद करना चाहिए। इसलिए अमल करके कुछ नेकियां हमें बनाना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, नहीं भाई फलाने वलिया को हमको बचा लेते, हमें उनके हाथ को बैठ करे, फलाने नबिया को हमको बचा लेते, फलाने जो है हमें दरगाह को संदल को जाते, उन्होंने को हमको बचा लेते। कोई किसी को नहीं बचाता, कोई किसी को नहीं बचाता। और ऐसे ऐसे पागल लोग हैं आज दुनिया के अंदर। तो कोई आदमी जो है सर्टिफिकेट खरीद रहा है हैदराबाद में 1,24,000 रुपए देके, एक डॉक्टर जो है मुसलमान एक बाबा के पास जन्नत की सर्टिफिकेट खरीदा करते। अल्लाह अकबर, कितनी बेवकूफी है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी अपनी बेटी को एक सर्टिफिकेट लिख को देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा को एक सर्टिफिकेट लिख के देते, देखो ये खबर में रख लो, तुम्हारे फरिश्ते क्या भी पूछते नहीं करो। अल्लाह के नबी ऐसा क्या भी बोले नहीं, अमल करो बोले। हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अल्लाह के नबी की खिदमत करते थे, उनका वजू का पानी रखते थे,
और अल्लाह के नबी के पैर दबाते थे, अल्लाह के नबी की खिदमत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे रबिया, तुम दुनिया में मेरी बहुत खिदमत करते हो, पूछो तुम्हें क्या होना है, तुम्हें पूछो, मैं इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई माल दौलत का इरादा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक काम करो, मेरी ख्वाहिश है, देखो दुनिया में मैं आपके साथ जैसा हूं, जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, देखो तुम्हें मेरे हाथ पे, मुझे अपने आंखों से देखे, मेरे हाथ पे बैठ करे, मेरे साहबी तुम्हें मेरी खिदमत करे, तुम्हें जन्नत में मेरे साथ रहते क्या, भी डरो ना को, ऐसा नहीं बोले अल्लाह के नबी। क्या बोले अल्लाह के नबी? अरे रबिया, अगर तुम जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो, जो इबादत तुम कर रहे हो वो बस होता नहीं, अभी जो इबादत तुम्हें करते हैं उसमें और भी करो, नफिलों से ज्यादा सजदे करके मेरी मदद करो। तुम्हारे नाम आमाल में अगर ज्यादा से ज्यादा सजदे है तो मैं कल कयामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करके तुम्हारे जन्नत में ले जाने मुझे आसान रहता बोले। तो लिहाजा अगर कोई बच्चा, अगर कोई आदमी रिकमेंडेशन भी कराता है किसी पॉलिटिशियन से, एक नौकरी है, समझो नेल्लोर में गवर्नमेंट नौकरी है, अब बच्चे को कम मार्क आए, अब मिनिस्टर साहब हमको मालूम, अब मिनिस्टर साहब का नहीं आता, हमारे बच्चे को जरा नौकरी दिलाओ। मिनिस्टर साहब बोले, अच्छा भाई क्या पढ़ा तुम्हारा बच्चा? हमारा बच्चा डिग्री पढ़ा, नहीं तो इंजीनियरिंग करा, क्या की बोलता उन्हें, अच्छा नौकरी दिलाना। कितने मार्क आए? 30 मार्क आए। क्या करता उन्हें? चप्पल से मारता। फेल हुए से नौकरी दिला तो मेरी इज्जत जाती रहे बोलता, फेल हुए से पास मार्क तो भी आना कम से कम। तो इंसान कम से कम नेकियां करे, कम से कम नेकियां करके उसके बाद उम्मीद रखे कि कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे तो हो सकता। ऐसा नहीं कि हमें क्या भी करते नहीं, हमें नमाज नहीं पढ़ते, दिल की नमाज पढ़ते, हमें दिमाग की नमाज पढ़ते, खबर की नमाज पढ़ते, ऐसा समझ को अमल कुछ भी नहीं करे। अल्लाह के नबी यहां साहबा को, अपनी बेटी को, अपने चचा को, अपने फूफी को, अपने साहबा को बोलते हैं, मेरे साथ रहना है तो ज्यादा अमल करो, ज्यादा नमाजें पढ़ो, ज्यादा नफिल पढ़ो। तो वो कौन से बाबा है, कौन से वली है जो अब जो है किसी को, बेनमाजियों को जन्नत में ले आ सकते? थोड़ा हमें सोचना चाहिए। तो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों के अंदर हम तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला यहां सबक दे रहा है कि नबी की बीवी होना किसी के लिए नजात का रास्ता नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पे चढ़ गया, सैलाब आ गया, पूरा पानी गरक होने लगा। कहा कि नूह अलैहिस्सलाम व नादा नूह इब्नुहु, अरे मेरे बच्चे आजा, तू आज मेरे कश्ती में आजा, आज तुझे कौन भी नहीं बचा सकते, अल्लाह का अजाब आने वाला है। उसने कहा, अब्बा जान सावी इला जबल, मैं वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। कहा कि बेटा ला आसिमल यौम, आज कोई पहाड़ किसी को नजात नहीं दे सकता। बाप बेटे के बीच में बात हो रही है। अल्लाह ने फरमाया वहाल बैनहुमल मौज, इतने में एक पानी का बहुत बड़ा लोट आया, पहाड़ भी डूब गया, बेटा भी डूब गया। नबी नहीं बचा सके। देखते देखते जमाने के नबी, वही दुनिया में पहले रसूल आदम अलैहिस्सलाम के बाद 950 साल तबलीग करे, अपने बेटे को नहीं बचा सके। कहा या अल्लाह मेरा बच्चा, हादा अल्लाह ये मेरा घर, मेरा औलाद है, मेरा बच्चा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या नूह लैसा मिन अहली, वो तेरे घर का नहीं है, तेरे खानदान का नहीं। जो ईमान लाए तेरे ऊपर, जो तेरे बात सुने, तेरे कश्ती में आके चढ़ गए, वही लोग ईमान वाले। अब इससे ज्यादा नहीं पूछना, वरना तुझे भी मैं जालिमों में शामिल कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह। देखिए, तो मेरे इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह के कानून अलग है, अल्लाह का कानून अलग है। अल्लाह के कानून में नबी का बेटा भी, नबी के बाप भी और नबी के चचा भी सब बराबर है। अल्लाह के नबी हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे चाचा मेरे सीने से लगा को मुझे पाले, उन्हें खाए नहीं तो भी मुझे खिलाए, उनके बच्चों को जो छोड़ के मुझे दुश्मनों से बचाए। पूरी जिंदगी मेरे लिए अल्लाह मेरे चचा मेरे अपनी जो है मुझे बचाते आए, मेरी हिफाजत करते आए। अल्लाह मेरे चचा की हिफाजत फरमा, उनकी हिदायत दे। अल्लाह ने फरमाया
आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, तुम जिसको चाहते उसे हिदायत नहीं मिलती, मैं जिसे चाहता हूं उसको मैं हिदायत देता। ये अल्लाह का कानून है। ये अब अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे लोगों को हिदायत नहीं दिया, हमाको दिया, तुम्हाको मुझे दिया। अल्लाह हमाको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की तौफीक दिया। अल्लाह हमाको मुसलमान बनाया, तो हमको चाहिए हम इस ईमान की हिफाजत करें, इस ईमान को हमें हिफाजत करे। ऐसा नहीं कि अब ईमान पे है कल ईमान छोड़ दे, ऐसा नहीं। अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगों याद रखो ऐसा ना हो कि तुम्हारी मौत जो है गैर इस्लाम पे आए। देखो मरते वक्त कलमा नसीब होना चाहिए, अच्छी मौत आना, अच्छी मौत मरना, ईमान के हालत पे मौत होना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला हमें ताकीद कर रहा है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इदा जा अहदकुम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि इदा हदर याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त आया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बुला के कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चों, कि देखो याद रखो अल्लाह के इस दीन को मजबूत से पकड़ो। क्या बोलते हैं? अल्लाह के दीन को तुम मजबूती से पकड़ो। इन्ना अल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह ने इस दीन को चुन लिया है, इस्लाम को चुन लिया, और इसी दीन पे मरना तुम्हें। अब तो मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, याद रखो इस्लाम पे मरो, इस्लाम को याद रखो, इस्लाम पे मौत आना चाहिए। इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करते हैं। तो हमको भी चाहिए हम अपने बच्चों को नसीहत करें, हम अपने बच्चों को नसीहत करें इस्लाम की तरफ। कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, हजरत लुकमान हकीम ने अपने बच्चे को कहा, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लजुल्मुन अदीम, ऐ मेरे बच्चे तू शिरक ना करना, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि बाप को डर है कहीं मेरा बच्चा शिरक में मुब्तिला ना हो, कहीं मेरा बच्चा शिरक में मुब्तिला होकर हमेशा के जहन्नम में चला जाए। उनको डर था, इसलिए उन्होंने कहा मेरे बच्चे तो शिरक नहीं करना चाहिए। इसलिए इसी तरह हम लोग भी अपने बच्चों को नसीहत करना चाहिए कि देखो शिरक से बचो और अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मांगो, पूरी जिंदगी अल्लाह से मांगो, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत ना करो। हम अपने बच्चों को नसीहत करते रहना चाहिए, हमेशा पूरी जिंदगी नसीहत करना चाहिए। और क्योंकि अगर कोई आदमी कितने भी अच्छे काम करता है, अगर वो तौहीद के ऊपर नहीं मरता, शिरक करके मर जाता है, वो जहन्नम में चला जाएगा, वो जहन्नम में चला जाएगा। अगर कोई आदमी शिरक नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू जमीन भर के गुनाह भी लेके मेरे पास आ, अगर तू जो है मुझसे शिरक नहीं करता है तो मैं उतनी ही मगफिरत के साथ मैं तेरे साथ मैं जो है मुलाकात करता हूं। मगर आज मुसलमानों की हालत, कलमा पढ़ने के बाद भी कुछ भी परेशानी आ गई फौरन चले जाते किसी बाबा के पास। देखो वहां गए तो मौलवी साहब क्या कि कोठरी में लिख को देते, कहते वो ला को पिए तो परेशानी खत्म हो जाती। अरे वहां जाकर उन्होंने क्या कि लिख को देते, कहते वो पानी में पिला को घुला को पिलाए तो अच्छे हो जाते, कहते। अरे वहां जाकर देखो उन्होंने क्या कि डोरी देते, कहते वो ला को बने तो अच्छे हो जाते। लोग क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आजमाता जिंदगी में, अल्लाह जो है बीमारी देता, अल्लाह शिफा भी देता, अल्लाह बीमारी भी देता, अल्लाह शिफा भी देता, इम्तिहान करता अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मैं तुम्हें जिंदगी भी देता हूं, मौत भी देता हूं, फिर जिंदगी देता हूं, फिर मौत देता हूं। और मौत और जिंदगी का ये खेल इसलिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
तुम में से कौन अच्छे काम करता है, कौन जो है बुरे काम करता है, अल्लाह देखना चाहता है। अल्लाह आजमाता, आजमाइश आती, बीमारी आती, 2 रोज बुखार कम हुई नहीं तो जाको डोरिया लाको बंद डालते लोग, नौज़बिल्ला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी को देखने का बुखार ही बोले तो क्या बा कैसी है बुखार, छिए हाथ को, क्या की कमी लगी हाथ को, क्या हुआ ये पहना तो हाथ में। अल्लाह के नबी बीमारी कम हो जाती बोल को पहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बीमारी नहीं कम होती, बीमारी को बढ़ाता है ये डोरी, ये तांत। मन ताल्लका तमीमतन फकद अशरक, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिरक किया। तमीमा किसके बोलते हैं? डोरी, तागा, कम्या, नजर के कद्दुआ, नारला, नजर को लगाने वाले चप्पला, नींबुआ, ये बच्चों को नजर को लगाते सो डालते सो डोरिया, और तुम्हें मिर्चा ले को निकाल नजर निकालना, ये सो भी तमीमा में आ जाता। जो ऐसा करता है उसने शिरक किया, जो शिरक किया। अल्लाह के नबी फरमाते अगर तू ये डोरी डालने को ऐसा मर गया तो, ये तावीज डालने को ऐसा मर गया तो मैं तेरे जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा। तुम बोले अल्लाह, उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं, डोरियां डालने को मर गया तो इसलिए अल्लाह आजमाता। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी नहीं आई क्या? अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी आई नहीं आई? सालों साल बादशाह थे, बच्चे थे, माल दौलत, सोना, खजाने, बीवी, दरबार, बंगले, सब खुशहाल चलता है। अल्लाह का शुक्र दिन रात अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। शैतान अल्लाह करने गया, देख अल्लाह तू अय्यूब को सब भी दिया तो इबादत करता है, ये एक बार उसे मेरे हवाले कर को देख, मैं उसे क्या करता हूं कि जब हम क्या करता कि इबादत देखेंगे। अल्लाह बोला चल, अल्लाह पहले जो बोल रहा कबे दुनिया में भेजते स्टम बचे हैं, क्या बोले अल्लाह तबारक व तआला, ईमान वालों के ऊपर तेरी कुदरत नहीं चलती, तेरी ताकत बस नहीं होती, वो लोग तो क्या भी कर ले, वो लोग मेरी इबादत करते, उनको तू पूरा कंट्रोल नहीं ले सकता, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता बस। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में चैलेंज करा शैतान, अल्लाह उसे इजाजत दिया। ऐसी बीमारी आ गई अय्यूब अलैहिस्सलाम को, पूरा मुल्क चले गया, बीमारी में मुब्तला हो गए, मुल्क पूरा बच्चे गिच्चे ले लिए, इनको ले आको गांव के बाहर छोड़ डाले। अब नबी है, ज्यादा उनके शान में गुस्ताखी नहीं करना, ले जाको गांव के बाहर गुड़सी है, मगर अल्लाह इतनी नेक बीवी दिया, बीमारी में भी शोहर को नहीं छोड़े। अल्लाह अकबर, खिदमत करते हैं और शोहर कमा सकते, अब क्या कर सकते नहीं, बीमार हो गए, जाते हैं कमा को लाको घर में, इनके घर में उनके घर में काम कर को बीवी शोहर को खाना खिलाते हैं। अल्लाह, आजमाइश इंसान को आती। अल्लाह क्या बोला पहले से, ऐसा नहीं कि देखो भाई हमारे चर्च को आगे तो तुम्हारी बीमारियां सो भी चले जाते, हमारे चर्च को आगे तो तुम्हारे परेशान है सो भी चले जाते। इस्लाम क्या बोलता है, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, वलनबुलवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें मैं जरूर आजमाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते ईमान बढ़ता है तो उतने ज्यादा आजमाइश आते, तुम में से कितना ज्यादा ईमान है तो अल्लाह उतना ज्यादा आजमाता। सबसे ज्यादा ईमान नबियों का है, नबियों में भी सबसे ज्यादा मेरा ईमान है, अल्लाह मुझे ज्यादा आजमाया, सबसे आजमाइश आती। दुश्मन के खौफ से डराता अल्लाह, दुश्मन के खौफ से डराता। आप देखो जरेने डरजा को उधर के धपना बजाते हैं, जाको अव्वल से पहले से थोड़ा जो है अल्लाह डराता। अब क्या बोलते हैं, जरा उधर उधर चले जाते हैं, हाँ वो लगा क्या तुम कर डालते कि दुश्मना, क्या अभी होता नहीं है। शैतान डराता, जब अल्लाह की मदद आती भाग जाता। जंगे बदर में क्या करा, अल्लाह के नबी को खत्म कर डालेंगे, 313 साहबा को खत्म करेंगे बोल के 1000 काफिरों को ले आ गया जंग के मैदान में शैतान। जब फरिश्ते उतरे मदद के लिए, अव्वल 19 भाग जाता है, इंसान के शक्ल में उन भी आया लड़ने के वास्ते, भागता है उसे। एक आदमी घट कमर पकड़ा,
क्या हजरत हमारे को बुला कर तुम्हें भाग जाते हैं? अरे तू छोड़ रहे बाबा, हम छोड़ता नहीं है, तू छोड़ रहे हैं मुझे। बोल के एक घूसा मार को बोलता है मैं वो चीजें देख रहा हूं जिसे तुम्हें नहीं देख सकते। जिब्राइल फरिश्तों को लेके उतरते हैं, साहबा फरमाते हैं तलवार उनको तो 10 सरहद कट जाते हैं वहां। अल्लाह चुपके जब चमका था शैतान, अल्लाह की आजमाइश भी हो बेईमाना, तो इसलिए अल्लाह आजमाता दुश्मन के खौफ से, वलजोई भूख से, कभी दे को आजमाता, कभी छीन को आजमाता अल्लाह, कभी अच्छा दे डालता, खा को शुक्र अदा कर रहे हो, कभी अल्लाह ले छीन लेता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अम्वाल, माल की कमी, कभी अच्छा आ जाता बिजनेस पूरा, कभी लोभी हो जाता, डर को जाकर वड्डी ले हो गया खलास। शैतान क्या करता, बीवी का चेहरा लाता सामने, तेरी बीवी क्या हो जाती कि रे न रे, अब तो निकाह कर को ला लिया, मासूम चेहरा दिखाता, बच्चों का चेहरा लाता, तेरे बच्चे देख गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेना, सबके बच्चे यहां पढ़ते हैं तो परवाह नहीं, ये सो भी बोलने वाले बोलते हैं ले ले सूट को ले ले, नहीं तो गलती कर डाल, हराम काम कर डाल, किस तो भी डुबा डाल, क्या तो भी कर डाल, तेरा घर तू बसा ले, बोलता शैतान, गलती करा डालता। इन्ना शैतान यईदुकुमुल फकर, अल्लाह फरमाता है फखर और फाखा देख डरा डालता, अरे मर जाता गई कि तू खाना नहीं सका, मर जाता गई कि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लोग तुम्हारे मां के पेटों में 40 दिन जो है नुतफे के शक्ल में रहते, 40 दिन गुजरने के बाद वो नुतफा खून का लोथड़ा बनता है, 40 दिन गुजरने के बाद वो खून का लोथड़ा गोश्त का लोथड़ा बनता है, 40 दिन के बाद वो गोश्त का लोथड़ा फिर बढ़ने लगता है। उसके बाद अल्लाह के तरफ से एक फरिश्ता आता है और फरिश्ता एक रूह को एक इंसान की रूह को लाकर मां के पेट में फूंक के और उसकी 4 चीजें लिखता है। पहली चीज उसका रिस्क, पहला लिखता रिस्क है। पहला क्या लिखता फरिश्ता, उन कितना खाता, वो खा कुछ मरता उन्हें, एक दाना कम भी खाता नहीं, उसकी मौत आती नहीं, कितना लिखा है कि फरिश्ता उतना लिखता। वह रिस्क बोले अल्लाह के नबी, पहले रिस्क लिखता, अल्लाह लिख कुछ भेजा जी तकदीर में, क्या भी भूखा मारता नहीं अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह जो है भूखा नहीं मारता किसी को, शैतान डराता खाली। तो क्या हुआ, पहले रिस्क लिखता, उसके बाद मौत लिखता, उसके बाद उन जन्नती है जहन्नमी लिखता, उसके अमल लिखता, लिख को चल जाता फरिश्ता। पहले क्या लिखता, रोजी लिखता। कहीं को डरना हमें, तो लिहाजा आजमाइश सबको आती, नबी को आ गई, हुकूमत चली गई, चलो क्या परवाह नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बच्चे छोड़ डाले, इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन, चल गए। अल्लाह का शुक्र है नेक बीवी मिली, कमा कमा को लाको, हाँ काम कर को, हाँ काम कर को लाको खिलाते हैं पालते हैं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह आजमाता, क्या भी बोले नहीं, अय्यूब अलैहिस्सलाम सालों साल गुजर गए, सालों साल गुजर गए, अब बीमारी तकलीफ ज्यादा हो गई, 2 हाथ उठाकर अल्लाह के सामने दुआ करते हैं, रब्बी अन्नी मसन ये शैतान बिनुस्बि व अदाब, अल्लाह शैतान मुझे छू को तकलीफ में डाल डाला, बीमारी आ गई, अल्लाह रब्बी अन्नी मसन यदुर्र व अंता रहमुर राहिमीन, अल्लाह इतने दिन सब्र कर लो, अल्लाह तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, मुझे बीमारी आ गई। अल्लाह फरमाता है अय्यूब तुम्हारी एड़ी मारो नीचे जमीन को, इतने साल में क्या भी मांगे नहीं, पहली बार मांगते हैं तुम्हें, मारे पानी का फवारा निकला नीचे जमीन में से फाड़ ले को, अल्लाह बोला पानी पियो, वो पानी नहा लो, तुम्हें बुखारी की रिवायत है पानी नहा ले, पानी पिए अच्छे हो गए, दुल्हा बन गए अय्यूब अलैहिस्सलाम, पहले हालत के जैसा अच्छे हो गए, खूबसूरत बन गए। वो पानी के थिड्डे में बुखारी शरीफ की रिवायत है, वो पानी में से सोने के थिड्डे आए, थुड्डे को पड़े, वो चुन लेते हैं उन्होंने, अय्यूब मैं तुम्हारा ये माल दौलत से मैं अगना नहीं किया, मैं तुम्हारा इससे ज्यादा माल दौलत दिया नहीं, पहले तुम्हारा कहीं को वो चुन लेते हैं। अल्लाह तेरी बरकत को मैं छोड़ना नहीं चाहता। इंसान क्या करता, जरा पैसे है समझ लो, आधा खा आधा छोड़ डालता, जरा अकड़ता जमीन को, लोगों के सामने बड़े ही दिखाता नहीं, उंगली चाट को खाना, दाना दाना की हिफाजत करना, बेबरकती कई बात ही, आधा खाए आधा फेंके, आधा खाए आधा सड़ा को फेंके, अल्लाह को पसंद नहीं, शैतान खाता वो खाना।
मोटा हो जाता हमारा घर का शैतान, नौजुबिल्ला, उसे भी खा खा को। उसके वास्ते क्या करना, सुन्नतों की पाबंदी करना। जर्रा डाल ले खाओ, अभी होने तो जरा डाल लो, अभी होने तो जरा डाल लो, बिस्मिल्लाह बोल को खाओ, सीधे हाथ से खाओ, उंगलियां चाट लो। बच्चों को सिखाना बरकत कैसा आती घर में। अय्यूब अलैहिस्सलाम बोलते अल्लाह है को नहीं, तेरी बरकत में कोई सी चीज भी मैं छोड़ना चाहता नहीं अल्लाह। उनकी बीवी आगो इधर धुनते हैं उधर धुनते हैं, कहाँ जहाँ हमारे हमारे बुजुर्ग हजरत है ना, हमारे मेरे मेरे शौहर मेरे नबी कहाँ चले गए बोल के धुनते हैं, तो मैं तुम्हारा शौहर। अल्लाह तबारक व तआला अच्छी हालत भी देता, आजमाता। फिर अल्लाह किसके लिए खुशखबरी है, वह बश्शिरिस साबिरीन, सबर करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है खुशखबरी है, सबर करो। सबर से बड़ी चीज क्या भी नहीं। इंसान की जिंदगी में कितने की ऊंच नीचे होते रहते, जितना इंसान सबर कर लेता अल्लाह तबारक व तआला उतना जो है उसके करीब जो है अल्लाह तबारक व तआला आता, और अल्लाह की मदद होती। अल्लाह की मदद नहीं, इन्नल्लाह मास साबिरीन, एक अल्लाह की मदद, एक अल्लाह खुद उसके साथ रहना, दोनों दो दो चीजें हैं। अल्लाह ने नहीं कहा कि मेरी मदद उसके साथ रहती, अल्लाह ने कहा मैं खुद रहता हूं, मास साबिरीन, इन्नल्लाह मास साबिरीन, मैं सबर करने वालों के साथ ही रहता हूं, बोलता है अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए हमें सबर का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को कैसे आजमाता, क्या है, वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल बश्शिरिस साबिरीन। ये जो आयत मैं पढ़ा हूं, ये पढ़ने के बाद दूसरी आयत अल्लाह के नबी फरमा अल्लदीना इदा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ईमान वालों को कोई मुसीबत आती क्या बोलते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। खबरां कने दौड़ते नहीं, दरगाह कने को, झंडे के झाड़ा कने को, बाबा ला करें, डोरा लाने, वो करने ये करने दौड़ते नहीं, क्या करते, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, हमारे घर में यह बिचा में सबको बुखार आ गई, एक के बाद एक जने मर जाते हैं, हम क्या की हो गया, क्या भी नहीं हुआ, तकदीर में अल्लाह जो लिखा, कद्दर अल्लाह माशा, अल्लाह जो लिखा वो छोटा। अल्लाह बचाना चाहा तो उसे कौन भी क्या कर सकता नहीं, अल्लाह नहीं बचाना चाहा तो कौन भी आगो बचा सकता नहीं, नबी भी बचा सकता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बच्चे को हाथ में लिए बोलते हैं मेरे बच्चे, मैं तुझे अल्लाह की तकदीर के सामने मैं क्या भी कर सकता नहीं, अलबत्ता मेरे आंखों से आंसू बहते, मेरे जुबान से ऐसी बात जो अल्लाह को नाराज हो नहीं निकलती। नबी भी क्या नहीं करे, 3 मर्द बच्चे पैदा होकर मर गए उनके, कौन क्या करते, नबी, नबियों के सरदार, जन्नत में सबसे पहले जाने वाले, कयामत के दिन सबसे पहले सबकी सिफारिश करने वाले, कई को अल्लाह उनको आजमाइश दिया तो उनको मुसीबत आई तो किसे भी आ सकती, वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा अल्लाह ले लिया। एक बार एक साहबी उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार हो गए, सफर में गए उन्होंने, बच्चा इंतकाल हो गया। उनके बीबी इतने सबर वाले थे, इतने सबर वाले थे, बच्चे को नहलाए धुलाए कफन पिला को रख डाले, अंधारा हो गया रख डाले। रात को शोहर आए तो क्या करना, हम यहाँ क्या, तो जरा सुन चुभी समझ लो। अब ऑफिस में दुकान में शोहर को चैन से बैठने देते नहीं, फोन कर डाल को, ओ अम्मो हो गया तुम्हें आओ घर को, हो खून चल जाता है, वो हो गया हम घाबे को छोड़ कर चल गए तुम्हें, वो ये बोल को बोलते, क्या भी बोले नहीं, चू नहीं चाह नहीं। बच्चा इंतकाल हो गया, घर को आए तो दरवाजा खोलना देरी क्या करते, जे वो बिल ये वो मुसीबत बोलते, पहले असली चिन गुस्से में आता, घर के बूढ़े बाजार के परेशान झील को आता, इन सलाम बोल को घर में भी आता नहीं। अब यहां शुरू घर में कंप्लेंट अब जरा बीपी इसकी बढ़िया थी, है ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले सलाम बोलो, वालेकुम अस्सलाम बोलो, पानी दिए बैठे, इंसान जो है खुश और खुर्रम रखना चाहिए इंसान घर का माहौल। ईमान वालों को सबर होना चाहिए। आए क्या भी बोले नहीं, पहले पानी नहा लो, बोले पानी नहा ले, खाना डाले, खाना खाए, अंधेरे के अब जैसे लाइटा नहीं ना, अंधेरे के हरा थे, क्या है बच्चा सो जाता है, बच्चा कैसा है, हाँ
अब से भी पहले से भी आराम की जगह है। क्या बोले? अल्लाह अकबर। देखो, पहले से भी आराम में है। बच्चा कैसा है? पहले से भी आराम से है, यानी अल्लाह के पास आराम से है, इनका मतलब। उसके बाद क्या भी बोले नहीं। अब उनकी ख्वाहिश हुई बीवी से मिलने की, बीवी से मिले। उसके बाद सुकून से वो उनके पूरे ख्वाहिशां पूरा करे, खाना खले, सुकून होने के बाद उनके हाथ में हाथ डाल को पूछते हैं, देखो जी, हमारे को वो कौन तो भी एक चीज अमानतन दिए, अमानतन रखो बोल को, हमारी नहीं वो चीज है, कौन तो भी अमानतन दिए, बाद हमें पूछे तो देना नहीं देना, नहीं दे डालना। तो अल्लाह जो उसके बाद बोलते हैं दे डालना ना। अल्लाह हमारे को अमानतन बेटा दिया, बेटा ले लिया, इनको गुस्सा आ गया, बच्चा मर जाओ को इतना खुद हुआ, अब बोलते हैं तुम्हें, साहब गुस्सा आया। अल्लाह, खैर ठीक, तदफीन हो गई, सब हो गई। सुबह को अल्लाह के नबी कने गए। अभी अल्लाह के नबी कने जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारी बीवी के लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत की खुशखबरी है। वह बश्शिरिस साबिरीन, सबर करने वालों के लिए जन्नत की। पहले पहले मार को, लोट को, रोदाल को, सीने कूटले को, एक 2-3 महीने के बाद मैं बहुत सबर करी, उसे सबर नहीं बोलते। सबर वो है इंदल मुसीबा, मुसीबत आते ही जो करते उसको सबर बोलते। तो नेमतों का देना, नेमतों का छीनना, ये अल्लाह की मर्जी है। तन्हा आए, तन्हा चले जाते। क्या हो, ये धन, ये दौलत, ये इज्जत, ये सब दुनिया में ही रह जाएंगे। शायर बोलता, धन दौलत माल, ये सब जो है दुनिया में ही रह जाएंगे। मुट्ठी बांध के आया बंदा, हाथ पसारे चला जाएगा। हाथ स्टेम्पो मुट्ठी बंद को आता, रोका, च्या च्या बोल को रोता आता, जाते स्टेम्पो हाथा खोल डालता, दम निकल, रूह निकल जाती, हाथा पसार लेको चल जाता, वो भी दूसरे बनना, टाइट से 2 पांव वहां, 2 हाथा बन को ले आको देते। तो ये तन्हा जिंदगी है, तन्हा आए तन्हा चले जाना। ये बीवी, शोहर, बच्चे, ये सब अल्लाह के लिए हमें उनका हक अदा करना है। असल में ये सब कुछ आजमाइश है हमारे लिए, ये सब आजमाइश है हमारी। हम तमाम अल्लाह तबारक व तआला पूरे रूहों को एक रोज पैदा करा। मुझे जिस दिन अल्लाह मेरी रूह को पैदा करा, उसी दिन मेरे बाप की रूह को भी पैदा करा, मेरे दादा की रूह को, मेरे परदादा की रूह को रोज पैदा करा। दुनिया के एतबार से दादा पहले आते, बाद अब्बा आते, बाद हमें आते। ये दुनिया में उम्र का फर्क है, असल रूह का उम्र एक ही है। रूह एतबार से सबकी उम्र बराबर, सबको एक दिन पैदा करके अल्लाह पूछा, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला शहीदना, अल्लाह हम गवाही देते, तू ही हमारा रब है, गवाह दे का है हमें। यहाँ कहा को भूल जाको, सब कुछ जो है उसका ने इसका ने जो है इंसान भटक रहा है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम सबर का दामन इख्तियार, सबर है तो शिरक भी नहीं करते, सबर है बिदअत के काम भी नहीं करते, सबर है तो हराम के तरफ भी नहीं जाते। असल जो जिसके पास सबर टूट जाता वही आदमी गुनाहों में मुलविस हो जाता। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह तबारक व तआला। तो उसके बाद देखिए अल्लाह तबारक व तआला, उसके बाद अल्लाह 2 औरतों की मजीद जो है जो हमें मिसाल दे रहा है। 2 बदकार औरतों की मिसाल देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? वदरबल्लाहु मसलन लिल्लदीना आमनु मरात फिरौन, फिरौन की बीवी, दुनिया का सबसे बड़ा जालिम। आज कौन उसका नाम भी लेते नहीं, उसका नाम किसे रखते भी नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा जालिम कौन का? तो यहूदिया हो, ईसाया हो, मुसलमान हो, सबसे क्या बोलते? पहले फिरौन बोलते। इतना बड़ा अना रब्बुकुल मूल आला बोलने वाला, मैं इस रब जी, मेरे से बढ़ को कौन रब नहीं, सब जने मुझे मानो, मेरी इबादत करो बोलने वाला फिरौन। मगर उसकी बीवी इतनी नेक थे, फिरौन आसिया रजी अल्लाह अन्हा इतनी नेक थे, मूसा अलैहिस्सलाम को पाले बड़े करे। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होके आके दावत दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब फिरौन क्या करा? मेरे बीवी होके मेरी तरफदारी छोड़ को उन गुलाम बनी इसराइल के गुलामों के मजहब, उनके रब को तुम्हें इख्तियार करते, उसका अल्लाह पे ईमान लाती तो बंदा लो इसे। वह फिरऔन जिल औताद, फिरौन के पास जो बड़े बड़े अजाब थे उसमें सबसे बड़ा अजाब क्या था? बड़े बड़े मेखा थे उसका, नहीं वो मेखा लेको जिस्म में उतारता था।
बड़े बड़े मेखा, एक एक जॉइंट में एक एक मेख उतारता, पूछता अब ईमान ला छोड़, फिर दूसरा मेख उतारता, अब छोड़े, तीसरा मेख उतारता, पूछता अब छोड़, छोटी परेशानी तो परेशान हो जाते हमें, छोटा धक्का लगा तो घबरा जाते हमें, इतना सबर करे। आखिर में कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, कहा क्या कहा, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ये जालिम मुझे सता रहा है, अल्लाह मुझे ये जुल्म से, वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिद ज़ालिमीन, अल्लाह ये जालिम कौम से मुझे बचा, ये फिरौन के जुल्म से मुझे बचा, अल्लाह तेरे पास मुझे घर बना दे अल्लाह जन्नत में, मुझे दुनिया नहीं, दुनिया होना बोले तो महारानी थे उन्होंने, इजिप्ट के बादशाह की बीवी, उससे बढ़कर क्या होना, मुझे आखिरत होना, अल्लाह तेरे पास घर होना जन्नत में। अल्लाह तबारक व तआला आसमान के पर्दे फाड़ के अल्लाह तबारक व तआला जन्नत दिखा डाले, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत ने उनका घर दिखाया, इन्हों मुस्कुराते हैं हंसते हैं। फिरौन बोला पागल होगी ना औरत, और गले में मेख उतार को शहीद कर डाला, गले में मेख उतार को शहीद कर डाला। इसीलिए उर्दू शायर कहता है, उर्दू शायर कहता है कि मेरे जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, अल्लाह मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान और इसीलिए नमाजी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बोलो कुल इन्ना सलाती मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां बोल तो जानवर काटने की कुर्बानियां नहीं, वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, मेहनत की कुर्बानी। अब आप लोग चल को यहां तक है, मेहनत करे तो है यहां तक, अल्लाह के रास्ते में दीन की बात सुनना यह भी मेहनत ही है। तो ये वक्त की कुर्बानी और जिस्म की कुर्बानी, पूरे कुर्बानियां, वो महयाया वो ममाती, मेरा जीना और मरना लिल्लाहि रब्बुल आलमीन, अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। किसके लिए हमारा जीना मरना? अल्लाह के लिए। हमें जीते हैं अल्लाह के वास्ते, मरते अल्लाह के वास्ते। ये बच्चे ने तो मैं कब की मर जाती हूं अम्मा बोलते लोग, हाँ का तो बच्चों के वास्ते जीते हैं, गलत है, ऐसा नहीं बोलना। कोई बच्चों के वास्ते नहीं जीता, कोई शोहर के वास्ते नहीं जीता, कोई शोहर बीवी के वास्ते नहीं जीता, सब अल्लाह के वास्ते जीते हैं। बोलो क्या बोलना? अल्लाह के वास्ते जीते हैं, अल्लाह के वास्ते जिंदा रहते हैं। अल्लाह जब बुलाता उस वक्त हमारी मौत है, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं करते। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के लिए जीना। यहां देखो अल्लाह तबारक व तआला फिरौन जो इतनी बड़ी जालिम की बीवी को अल्लाह हिदायत दिया, जन्नत में उनका घर दिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबाता खुतूतिन, अल्लाह के नबी एक बार 4 ऐसे लकीरां डाले जमीन पर, 4 लकीरां। पूछे साहबा से क्या हो जी है, बोलो क्या हो ये लकीरां? मान लो अल्लाह के नबी तुम्हें बोलना, बोले देखो जन्नत में जाने वाले औरतों में अफजलीन औरतें हैं, एक औरत जन्नत में गए तो अफजल औरत ना, जन्नत में जाती है का तो अफजल औरत है, उसमें भी अफजलीन औरतें ये 4 जने। कौन ये 4 जने? नंबर 1 अल्लाह के नबी फरमाते हैं खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिरौन की बीवी आसिया, और तीसरा मरियम बिनते इमरान, ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी मरियम, और चौथी मेरी बेटी फातिमा। अल्लाह अकबर, अफजलीन औरत, ऐसी खिदमत। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कितना महक, कितना देखो कितना लाड़ प्यार से अल्लाह के नबी पाले उनको। जब शादी हो गई, खजूर के गुटला कुचलते थे उन्होंने चारा बनाने के वास्ते, खजूर के गुटला, खजूर के बींजा को वकली में डाल को कूट को ऊंटों को चारा बनाते थे, रोटी बनाते थे, गोंद को पूरा पानी लाते थे, पूरा काम करते थे। थक जा को बोले एक रोज, अली मैं थक जाती हूं, मेरे हाथ हो सकता नहीं है, मैं काम कर ना सकता हूं। तुम्हारे अब्बा अभी जंग से आए, गुलाम औरत है, उनका ने माले गनीमत है, जाओ एक औरत को ला लो, एक काम वाली को ला लो, तुम्हारा काम आसान हो जाता, जरा मदद मिल जाती तुम्हारे। भागते भागते गए, अल्लाह के अब्बा नहीं है घर में, अम्मी है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सौतेली माँ। पूछे क्या फातिमा इधर आए, अब्बा नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा बोला है तो मैं आको गई बोल को।
जैसे ही अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, बेटी आके गए दौड़ते दौड़ते, प्यारी बेटी के घर को गए। क्या बेटी मेरी, क्यों आए आप मेरे घर को? अब्बा जान मैं थक जाती हूं काम कर कर को, एक औरत को दो, एक गुलाम औरत को दो, मेरे काम में मददगार बन मिला हो जाता। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं बेटी, लोगों का माल है, अमानत है लोगों का, मैं इसमें से खयानत नहीं कर सकता। तुम्हारे तकलीफ होती है नहीं, तुम्हें क्या करो, सोते टेम्पो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर 30 पर 3 बार, 30 पर 3 बार, 30 पर 4 बार पढ़ लो, तुम्हारी पूरी थकान दूर होती। अब हमें जाग घर में बोलत क्या बोलते हैं, तुम्हें हॉस्पिटल में दिखाना बोलता बड़को, ये दुए बोलते हैं, तुम हमको बोलते हैं हॉस्पिटल में दिखाओ जी मुझे, कहते ये दुए बोल को बरो कर लेते हैं क्या तुम्हें कहते। ईमान होना चाहिए, दुआ से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता, दुआ से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता इंशाअल्लाह। यकीन होना चाहिए, बस यकीन होना चाहिए दुआ के ऊपर। दुआ कैसी चीज है, अल्लाह तबारक व तआला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को मछली के पेट में से भी अल्लाह सुना, अंधेरों में से सुने अल्लाह तबारक व तआला, जबकि वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मान सका, निकल गए उन्होंने, मछली निकल गई, मछली के पेट में चल गए, मछली जमीन के नीचे चल गई, अंदर चल गई, नीचे नीचे जमीन में छोटे छोटे पत्थर है, जमीन के अंदर दरिया में नीचे छोटे छोटे झाड़ा आते दरिया में, वो जो है अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। वो सुने, मछली के पेट में से सुने उन्होंने, अल्लाह से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे हुक्म के बगैर निकलना मेरा गुनाह था, अल्लाह मैं गुनहगार हूं, तू पाक है। अल्लाह ने क्या कहा, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह कहता है हमने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार को हमने सुन लिया और उनको गम से नजात दी, मछली को हुक्म दिए, मछली लाके दरिया के किनारे थूक को चले गए। अल्लाह फरमाता है वकदालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसा यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं, कयामत के सुबह तक जो भी मेरा बंदा ये दुआ करेगा, कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, उसे मैं ऐसा ही बचाऊंगा। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं अगर किसी को कुछ परेशानी आ गई तो तुम्हें क्या करो, ये दुआ पढ़ को दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 बार पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी दुआ करो, अल्लाह कबूल करता। 100 मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप 1 बार पढ़े तो भी अल्लाह कबूल कर सकता, 50 बार पढ़ेगी तो भी अल्लाह कबूल कर सकता, 100 बार पढ़े तो भी कबूल कर सकता, वो अल्लाह की मर्जी है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम सबर का दामन ना छोड़ें। खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और पूरी जिंदगी शौहर के खिदमत में गुजारे, अल्लाह जो भी माल दिया, दौलत दिया, पूरा इस्लाम के वास्ते लुटा डाले, पूरा इस्लाम के वास्ते लुटा डाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, अल्लाह के नबी मदीना आने के बाद अपनी पुरानी बीवी खदीजा को बहुत याद करते थे, बहुत याद करते थे, ऐसा याद करते थे कि याद आ गए तो उनके बारे में बोलते रहते, यहां तक के शौकन होने के वजह से मेरे सौत जो है, मैं उनके ऊपर मुझे गिरत आती थी। एक बार मैं बोल डालियो जो है शौकन होने की वजह से, वो गिरत से मैं बोल डालियो, तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला उससे अच्छी बीवी मुझे दिया, जवान और बीवी को, तुम्हारा कभी वो बूढ़ी औरत इसका याद आती क्या, तुम्हारा बोल डाले। अल्लाह के नबी इतना नाराज हो गए, तुम्हें ऐसा बोलते क्या खदीजा के बारे में आयशा? अल्लाह के नबी फरमाते उन्होंने मुझे ऐसे वक्त में साथ दिया जबकि तुम्हारी कौम मुझे धुतकारी, ऐसे वक्त में वो ईमान ले जबकि तुम्हारी कौम ने मेरे ऊपर ईमान लाने से इनकार कर दिया, लोग मुझे झुटलाए, उन्होंने मुझे अपनाए, ऐसे उनके बारे में बोलते। जब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतकाल हो गए, अल्लाह के नबी पर गम के पहाड़ टूट पड़े और उनके खबर का जब गड़ा खोदे उसमें उतरे और अल्लाह के नबी इधर उधर पलट को देखे, मेरी बीवी को बरहता की नहीं की ये लाहत बोल के, और इतनी प्यार मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थी। ऐसी बात नहीं कि अल्लाह में दूसरे बीवियों से नहीं थी, मगर
एक एक से जो है ज्यादा मोहब्बत होती। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से थी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा की फजीलत ऐसी है जैसे कि दूसरे औरतों पे, जैसे कि दूसरे खानों पे सरीद, एक अरब का एक खाना है जो गोश्त से वो बनता था, जैसे अब हमें मंदी बोलते, बिरयानी बोलते, तो वो जमाने में सरीद था। तो वैसी फजीलत है दूसरे खानों पे जो है आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को दूसरे औरतों पे है बोल के। तो माँ और बहनों, कहने का मतलब ये है हम मॉडल किसको बनाए। आज हमारी जिंदगी, अज़ान होती है, थोड़ी देर रोकेंगे, अज़ान जरा अज़ान होती है, अज़ान का जवाब दो।